नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज आपके लिए केमिस्ट्री इन लाइफ जो कि सेम थर्ड का एक पेपर है, उसमें हम रोल ऑफ जिंक यानी जिंक मेटल जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसका क्या काम है, कैसे वो काम करता है, कितना अबेंडेंस है, वो पढ़ेंगे आज। देखिए, जिंक मेटल इज़ रिलेटिवली मोर अबेंडेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी अबेंडेंट मतलब ज़्यादा है क्वांटिटी में। इन ह्यूमन बॉडी इट इज़ फाउंड इन मेटलोप्रोटीन्स, यानी मेटल और प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन है उसे मेटलोप्रोटीन कहते हैं। विच ऑल्सो बाइंड्स टू copper, chromium, mercury and other materials. Zinc is common element in nucleic acids, polymerase and transcription is factor, where its roles is structural rather than catalyst. It is a part of structural. Catalyst की जगह ये structure का part है. Zinc enhance करता है stereo selectivity of polymerization of nucleotides. Zinc स्टीरियो सेलेक्टिव यानी स्पेसिफिकली ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अंडर प्रीबायोटिक रिएक्शन कंडीशंस। प्रीबायोटिक जो रिएक्शंस है उससे पहले एक सेलेक्टिव स्टीरियो सेलेक्टिव के रूप में काम करता है। इट प्लेज अ स्ट्रक्चरल रोल फॉर्मिंग द पेप्टाइड्स इनटू मल्टीपल डोमेन्स और जिंक बाय कोऑर्डिनेटिंग विद सिस्टीन एंड हिस्टाडाइन, यानी इसका रोल है परफॉर्मिंग करता है पेप्टाइड्स इनटू मल्टीपल डोमेन्स, पेप्टाइड्स बनाता है, जिंक कोऑर्डिनेट्स विद सिस्टीन एंड हिस्टाडाइन। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज आर फर्स्ट रिकॉग्नाइज जिंक एंजाइम्स। Peptidase first recognize zinc enzymes. Later on, other zinc enzymes has been reported which are responsible for staggered physiological functions in the human body as maintaining the structure of proteins, the activities and deactivate the genes. उसकी activity और deactivate the gene. अब ये स्ट्रक्चर है जिसके हमने कहा कि ये हिस्टाडाइन है, ग्लूटामिक एसिड है, इसके अंदर ग्लूटामिक एसिड है, हिस्टाडाइन है और ये हिस्टाडाइन है। इस तरह से ये इसके साथ अटैच्ड है और ये जिंक मेटल है, डिफरेंट यूटीन हिस्टाडाइन 69 है, ये इसका ग्लूटामिक एसिड है, ये हिस्टाडाइन आ गया आपका। तो इस तरह से ये ग्लूटामिक एसिड 72 है। तो इस तरह से ये अलग अलग जो है एसिड्स जिंक के साथ एक्टिवेट हो रहे हैं, यानी कार्बोक्सी पेप्टिडेज है ये जिसके साथ ये जिंक अटैच्ड है और डिफरेंट एसिड्स ग्लूटामिक हिस्टाडाइन इनके अलग अलग नंबर्स हैं, वो इसके साथ अटैच्ड है। अब आपके नेक्स्ट है रोल ऑफ निकेल आयन। Only recently, the biological importance of nickel has been recognized. All the nickel proteins known today are formed from plants or bacteria. Nickel is lightly bounded to components of urease and it is essential for activities of the enzymes that catalyze the hydrolysis of urea to ammonia and carbonic acid. यूरिया को अमोनिया और कार्बोनिक एसिड बनाता है, उसका एक पार्ट है निकेल। Methogenic and several other type of bacteria are also known as nickel containing hydrogenase। कौन सा hydrogenase है इसके अंदर, which catalyze the reaction. Reaction is this H2, it will form H and release 2 electrons. The reduction of sulfate ions, the production of methane are perhaps the other reductive process. Specific environments of nickel are also indicated for nucleic acid. Nucleic acid
binding proteins, nucleic acid binding proteins, since nickel activate the gene by hydrogenesis. हाइड्रोजिनेसिस के द्वारा निकेल जीन्स को एक्टिवेट करता है. नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ मैग्नीज. मैग्नीज प्लेज ए क्राइटेरिया रोल, critical role in oxygen evolution catalyzed by proteins of photosynthetic reaction center. Manganese is the energy source for a series of redox reactions which are dealt separately in photosystem 1 and 2. In photosystem 2, a strongly oxidizing agent is formed, P680, where P stands for pigment, 680 is the wavelength of light absorbed, and it is responsible for production of molecular oxygen, जो ऑक्सीजन रिलीज होती है. The oxidizing agent is reduced and recycled for further use by interaction with manganese complex. During the sequence of events leading to the reduction of manganese is display there of its three of its oxidation states. 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है जो मैग्नीज इस सीक्वेंस में प्ले करता है. कब करता है? जो उसका रिडक्शन ऑफ मैग्नीज डिस्प्लेस 3 of its oxidation states. Moreover, superoxide dismutase of bacteria and mitochondria as well as pyruvate carboxylase in mammals are also manganese proteins responsible for various biological processes. ये देखिए कि फोटो सिस्टम के अंदर सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकल गया, सेकेंड एंड थर्ड ऑक्सीडेशन इसका हो गया. थर्ड इट विल फॉर्म 4, थर्ड एंड 4 मैग्नीज, एंड देयर इज अ वाटर, हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इट विल फॉर्म मैग्नीज सेकेंड एंड थर्ड. सो दिस इज द फोटो सिस्टम ऑफ मैग्नीज या ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मैग्नीज. यहाँ 3 तरह की हमने बात की, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मैग्नीज. तो हमने आज जिंक पढ़ा, जिंक के बारे में पढ़ा कि जिंक किस ह्यूमन बॉडी में बहुत एसेंशियल है, एबिडेंट है. कॉपर, क्रोमियम और मर्करी अदर मटेरियल के साथ मिलता है. जिंक जो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं इनमें काम करता है. स्टीरियो सेलेक्टिव है, जिंक स्टीरियो सेलेक्टिव है, पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन में काम करता है. ये स्ट्रक्चरल रोल इनटू मल्टीपल स्टडीज से कोऑर्डिनेट करता है. जिंक एनाइड्रेज या कार्बोनिक एनाइड्रेज जिसे हम कह रहे हैं, कार्बोनिक एनाइड्रेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये जिंक एंजाइम्स थे. और भी जिंक एंजाइम्स मिले पर ये स्टीरियो स्पेसिफिक है. Staggered physiological functions in the human body as maintaining the structure of protein activates and deactivates gene. इसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के जिंक का किस तरह से, निकल का पढ़ा कि निकल में बैक्टीरिया और प्लांट्स में, ह्यूमंस में भी निकल्स बहुत सारा हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स वगैरह. ये मेन काम इसका हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया टू अमोनिया एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये काम है. सेवरल अदर बैक्टीरिया में पाया जाता है हाइड्रोलिस विच कैटलाइज द रिएक्शन. तो इस तरह से ये होता है स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है निकल के लिए न्यूक्लिक एसिड्स में, जो प्रोटीन को बाइंड करती है और एक्टिवेट करती है फॉर जीन हाइड्रोलिसिस. इसी तरह मैग्नीज है, मैग्नीज का मेनली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज में होता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. तो मैग्नीज पी यानी फोटो सिस्टम में पाया जाता है. P68 फोटो सिस्टम. P stands pigment, 68 is the wavelength absorbed and responsible production of molecular oxygen. तो इसी के अंदर का मैग्नीज 3 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मिलता है हमें. और ज़्यादातर ये जो ऑक्सीडेज डाइम्यूटेज एक एंजाइम है जो बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है. एज वेल इन पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इन मैमल्स ऑल्सो मैग्नीज प्रोटीन जो कि वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए जिम्मेदार है. मैग्नीज की फोटो सिस्टम में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं. इसी के साथ आज हम क्लास समाप्त करते हैं. नेक्स्ट में हम कुछ और नए मेटल्स लेंगे. धन्यवाद.